So with this, I'm starting off, and today we'll be looking at the Wheel of Fortune. And if a time change is given, please stick to that time change. It is done for a purpose. Okay. I waited 2 minutes more today, but kal se I'll not. Good evening, sir. Good evening, all. Good evening, Gulshan. So today we have the Wheel of Fortune. Now कल तक आपने फूल की जर्नी में क्या क्या देखा? आपने देखा कि फूल ने एक जर्नी की शुरुआत की, वो मैजिशियन बना, उसने अपनी ट्रिक सीखी। फिर वो जर्नी शुरू करने से पहले हाँ, फीमेल पोप हाई प्रीस्टेस के पास गया स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए, आउटर वर्ल्ड डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट कैसे करते हैं ये सीखने के लिए। देन ही वेंट ऑन टू द एम्प्रेस द मदर टू लर्न सम ऑफ द feminine traits or the motherly traits from her. Then he went on to the father, the emperor, to learn how to rule, to learn how to protect, to learn how to carry forward a emperor's rule and how to be full of structure. And then we look at the Hierophant, where he learns the spiritual, the worldly spirituality. Spirituality को दुनिया जिस आम भाषा में समझती है, धर्म, ट्रेडिशन, इन सब चीजों को उसने जाना, देखा, समझा। तो यहाँ पर क्या शिक्षा दी जा रही है कि to be a successful person, you need to be having the both male and female qualities in yourself, and you should be aware of the religion and the spirituality too. So there's a difference between religion and spirituality, and both should be adhered to. Okay, both should be known of. Then he went on to the he went on to the levels to learn decision making. Then after there, he went to finally go out and explore himself. When he went out with the chariot, there were some fears that were coming up, and he decided to work upon those fears. Maybe he was not able to work upon those fears, so वो फिर क्या हुआ, hermit mode में चला गया. It's called the hermit mode. There's a phrase for it. Hermit mode is where you get into a mode of alienation. You seclude yourself, you alienate yourself, ठीक है? तो समाज से, लोगों से खुद को अलग करके, why? To do something, to learn something, or as said in the last class, to process the data that you have collected. Now you have processed that data and you have reached the wheel of fortune. यानी जब इंसान एक चिंतन मनन के स्टेट से बाहर निकलता है, उसके पास कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, और वो कंक्लूजन्स, वो सॉल्यूशंस और वो दिशा उसको क्या देती है? एक नई शुरुआत देती है. सो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून is a card which speaks about new beginnings. It speaks about a second chance at life. It speaks about how you can send good vibes into the universe, and those good vibes, those good energies will come back to you. So the wheel of fortune, आप जैसा करते हैं वैसा आपको मिलता है. तो wheel of fortune का card, that is number 10, and here we mark the halfway through the major arcana. ठीक. So the wheel of fortune is the number 10 card, and you see that there is a wheel in between, right? This is the wheel of time, and there are three winged figures, ठीक है, जिसमें के तीन पंख वाले एनिमल्स हैं और एक आदमी का फिगर है. टोटल इन 4. चारों के अलग अलग आपको देखने में आ रहा होगा अगर मेरा माउस विजिबल है तो. यर 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 एंड यर, ठीक. चार ये एलिमेंट्स हैं. नाउ दीज आर द 4 एलिमेंट्स, जो कि क्या मतलब होता है विल सी लेटर ऑन, ठीक है. um okay, is this marking still there? Yes, sir. Okay, anyways,
ठीक. So there are 3 winged animals and 1 angel figure. ये व्हील जो है क्लाउड्स के बीच में ब्लू स्काई में से निकलता हुआ आ रहा है. अगर आप देखेंगे देयर आर क्लाउड्स ऑल अराउंड और वो बीच स्काई में से निकल रहा है. ये क्या दिखा रहा है कि चिंता के बादल हट रहे हैं और समय आपके फेवर में आ रहा है. देयर इज अ ब्रेक थ्रू. आप बादलों को चीरते हुए, प्रॉब्लम्स को चीरते हुए, उनके बीच से होते हुए यू आर कमिंग आउट एंड द डेस्टिनी इज एट वर्क. डिवाइन लॉज आर एट. यानी अगर आपने पहले कुछ किया है, पहले कुछ अच्छा किया है, तो वो आपको अब जो है कि बेनिफिट देना शुरू कर रहा है. यस गायत्री, आज चेंज किया था टाइमिंग, 8:15 किया था. ठीक है. सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज द हाफ वे थ्रू द टैरो जर्नी. और यहां से हम देखेंगे कि हमारा वर्ल्ड, कि हमारा जो जर्नी है वो पहले बहुत ही क्या था, प्लेटोनिक था. प्लेटोनिक एज इन जो दुनिया में, समाज में हो रहा है, चल रहा है. अब यहां से जो जर्नी होगी दैट विल बी मोर स्पिरिचुअल, दैट विल बी मोर टुवर्ड्स द इनर सेल्फ. अभी क्या था, अभी आउटर सेल्फ में आपने सीखा कि बाहर आप कैसे लोगों से हैंडल करते हैं, हाउ यू टैकल विद देम, हाउ यू फेस देम. नाउ यू आर गोइंग टू कम इनटू व्हाट, यू आर गोइंग टू गेटिंग इन टच विद द इनर सेल्फ ऑन स्टार्ट एंड सॉरी कंटिन्यू विद दिस स्पिरिचुअल जर्नी. आगे क्या आएगा, अभी जस्टिस आएगा, डेथ आएगा, डेविल आएगा, टेम्परेंस आएगा. सो दीज आर ऑल द ट्रेट्स एंड क्वालिटीज दैट कम फ्रॉम विदिन. ठीक. Now, the wheel is number 1 card, the number 10 card, which is numerologically linked to number 1 magician. And it also is connected to number 19, the sun. तो magician करते समय we saw कि wheel of fortune से उसका connection था. कहने का क्या मतलब है, उसने क्या किया था, उसके एक हाथ ऐसा था, एक हाथ ऐसा. He was trying to manifest the things. आप मैनिफेस्ट क्यों करते हैं? व्हाई यू मैनिफेस्ट? बिकॉज यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, यू वांट टू हैव बेटर डेज इन लाइफ. अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो आप बैठ के मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे. तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विच मींस यू आर इनवाइटिंग न्यू अ बेटर लाइफ और अ बेटर जर्नी फॉर योरसेल्फ. तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क करना कहाँ से शुरू होता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून से. Wheel of Fortune suggests that now the things are starting to align in your favor. Align in your favor यानी आपके फेवर में चीजें मुड़ना, डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है. ठीक है. एंड फाइनली जो है वो सन है. सन इज अबाउट हैप्पी डेज, हैप्पी आउटकम्स. तो वो जब सन आएगा तब उसको देखें. ठीक है. व्हील के कीवर्ड्स इस पीडीएफ में यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन कीवर्ड्स यू कैन राइट एज फेट, डेस्टिनी, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, बेटर टाइम्स, ब्रेक थ्रू, एटसेट्रा. ठीक. आपका जो पीडीएफ अभी जाएगा उसमें कीवर्ड्स लिखे रहेंगे. सो इट्स ओके. फॉर नाउ कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. फिर इसमें देखेंगे कि इसके सिंबल्स आप पर आ जाते हैं. व्हील है, व्हील के ऊपर देयर आर सम सिंबल्स रिटन. दोज आर टोरा, TARO, टारो. और उसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जो कि पढ़ने में क्या आएगा, रोटा. ठीक है. ROTA. तो आप TORA भी पढ़ सकते हैं और ROTA भी पढ़ सकते हैं. Now this is what? This is the symbol of sun. Sun को जब भी डिनोट करना होता था तो इजिप्शियन फिलोसफीज में it was denoted by this figure. ठीक है. So sun is coming out. दुख के बादल छटते हैं और सुख का सूरज बाहर आता है. Like that. Okay. ये वहां पर डिनोट करने की कोशिश की जा रही है. और टोरा और रोटा यानी चक्र आपके फेवर में भी हो सकता है, चक्र आपके नॉट फेवर में भी हो सकता है. क्यों? बिकॉज एज यू सो, द व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप. ठीक. आप जैसा बोते हैं वैसी फसल आपको होती है. तो अगर आपने अच्छा किया है तो टोरा, व्हील आपके फेवर में घूमेगा. बुरा किया है तो व्हील आपके नेगेटिव में जाएगा. ठीक. सर इसको टैरो भी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, टैरो नहीं पढ़ेंगे. टैरो पढ़ने के लिए पूरा टी होना चाहिए ना, तब तो टैरो पढ़े. अच्छा. ये टारो है, TARO है. इफ यू लुक क्लोजली इट्स TARO. ठीक है. टारो हो जाएगा. ठीक. ओके. TARO. अब आ जाएंगे नेक्स्ट. तो व्हील पे एल्केमिकल सिंबल्स बने हैं. ठीक है. Now what are these alchemical symbols? These are the 4 elements and the what do you say?
हाँ, 4 symbols and sorry, 4 elements and the 4 necessary mystical philosopher stone. Mystical philosopher stone. इसके बारे में क्या है ये I'll briefly explain. ठीक है, सो सबसे ऊपर जो है वो मर्क्यूरी का सिंबल है, राइट साइड में सल्फर का सिंबल है, नीचे वाटर का सिंबल है और लेफ्ट साइड में सॉल्ट का सिंबल है. ठीक है, सो देयर वाज समथिंग कॉल्ड द मिस्टिकल फिलोसोफर स्टोन. तो इसकी हिस्ट्री जानने की अभी जरूरत नहीं है, इसको आपने क्या समझना है, द 4 बेसिक एलिमेंट्स, एयर वाटर फायर एंड अर्थ. ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो फिलोसोफर स्टोन है ये अलग अलग फिलोसफी में ले जाता है, विच सेज कि आपको अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चारों दिशाओं से शक्ति चाहिए, अम, चारों दिशाओं का कंट्रोल चाहिए. ठीक, और चारों एलिमेंट्स आपके फेवर में होने चाहिए, दैट वे आल्सो. देन देयर आर द हिब्रू लेटर्स, हिब्रू लेटर्स विच आर YHVH, जिसको पढ़ेंगी याहवेह, याहवेह, YAHWEH. उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है YHVH, यानी गॉड. दिस इज द नेम ऑफ गॉड इन जुडाइज्म. ठीक, तो नेम ऑफ गॉड यानी डिवाइन से कनेक्शन. तो ये जो छोटे छोटे सिंबल्स आपको दिख रहे हैं ये सब क्या दिखा रहे हैं, डिवाइन से इस कार्ड का कनेक्शन दिखा रहे हैं कि डिवाइन आपके फेवर में है, डिवाइन पावर्स आपके लिए वर्क कर रही हैं. देन देयर इज अ स्फिंक्स. स्फिंक्स जो आपका इजिप्ट में है वैसा स्फिंक्स स्फिंक बना हुआ है, which again shows what unity in diversity. आपने चैरियट में देखा था, there was again a sphinx, a black and a white, which was again speaking about what, unity and diversity, that everything coexists. सब कुछ साथ एग्जिस्ट करता है, और जब सब चीजें साथ होती हैं तभी विकास होता है, राइट? सो नो पॉलिटिकल प्रमोशन बट सबका साथ सबका विकास. तो दैट इज व्हाट the philosophy behind this can be. ठीक है, then there is a snake. Now the snake is the negative aspect of fate. ठीक है, जो किस्मत है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, और वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, which shows that your negative एस्पेक्ट, जितना भी आपके फेट में जितनी नेगेटिविटी थी, अब इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ वो नीचे जा रही है. ठीक है, एंड स्फिंक्स इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड एज वेल. क्यों? दिस शोज कि जब सब चीजें साथ आ जाती हैं तो आपके लाइफ में एक अथॉरिटी आ जाती है चीजों को वर्क कराने की. ठीक है, अकम्प्लिश करने की. अकम्प्लिशमेंट कब हो सकता है, जब पावर हो, अथॉरिटी हो, हाथ में एक क्षमता हो, शक्ति हो. ठीक, सो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ फेट इज गोइंग डाउन, यानी नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं चढ़ रहा है. ऊपर चढ़ना इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, नीचे चढ़ना इज डाउनग्रेडिंग. देन यू हैव द गॉड अनुबिस. तो जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दैट्स अ जैकल हेडेड, जैकल का हेड है, एंड इट्स एन इजिप्शियन गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. आफ्टर लाइफ यानी कि जब इंसान मर जाता है तो हिंदू फिलॉसफी में क्या होता है कि वैतरणी नदी पार करता है तब वो सोल जाकर के कहीं रेस्ट करती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे इजिप्शियन फिलॉसफी में बताया गया है कि ये जो गॉड अनुबिस है ये आपके सोल को, he helps in traveling your soul from this lifetime to the other life. तो ये क्या क्या कह रहा है, कर्मा. जब सोल की बात होती है तो कर्मा आता है. लोग कहते हैं ना, पता नहीं पिछले जन्म का क्या, मैंने किसका क्या बिगाड़ा. तो किसका क्या बिगाड़ा था, कम्स फ्रॉम हियर. यानी कि अब अगर आपने कभी पिछले जन्म का भी अगर आपका कोई छोड़ा बहुत पुण्य होगा, वो भी आपको इस कार्ड के साथ हेल्प करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्ड. ओके, then you have the angel and the 3 animals. Now these are the 4 gospels present in the New Testament. तो एक बाइबल के 2 फॉर्म्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट. न्यू टेस्टामेंट में 4 जो है कि गॉस्पल्स बताए गए हैं. सॉरी, गॉस्पल नहीं बोलेंगे, इट्स कॉल्ड एन इवेंगलिस्ट. 4 इवेंगलिस्ट बताए गए हैं, मैथ्यू, खुद नहीं याद है, मैथ्यू, लाइट,
नहीं सॉरी, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन एंड मार्क। मैथ्यू, लूक, जॉन एंड मार्क। ठीक है, तो ये 4 हैं, लेकिन इसको वहां से कनेक्ट करने से बजाय आप कहाँ से कनेक्ट करेंगे? एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ठीक, क्योंकि वो क्लियर होने के लिए फिर न्यू टेस्टामेंट में इसका क्या मतलब है वो भी पता होना चाहिए, तो वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो जितनी भी ये चीजें हैं, वट एवर आई एम टेलिंग कि डू इट लेटर, तो टू डू में इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, कि आपके कोर्स का पार्ट है, लेकिन दिस इज लाइक अ स्मॉल इतू सा पार्ट जो कि आपको खुद से करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ये बताने बैठेंगे तो कोई क्लास उसमें निकल जाए। ठीक, तो आई एम डिस्कसिंग द मेन पॉइंट्स दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। ठीक है, सो ये इसके सिंबल्स हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के। एनी डाउट सो फार? कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, ठीक, sir. ओके। तो जनरल मीनिंग में wheel of fortune suggests that now the time is in your favor and whatever you've been working upon will work out at the end of the day. It shows कि आपको चलते रहना है, समय के साथ चलते रहना है और रुकना नहीं है कहीं पर भी। बहुत लोग क्या करते हैं, अब हम रुक गए, अब हमसे बिकॉज उनको सक्सेस नहीं दिख रही तो रुक जाते हैं। बट this card suggests that you should not stop and keep on moving forward because success is on the horizon. As said, the luck is in your favor. There can be new beginnings happening. You can be starting something, new relationship, new work, etc. etc. व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ये साइकिल के चेंज को बताता है, यानी अगर आपकी लाइफ में कोई बैड फेज चल रहा था तो बैड फेज अब खत्म होने वाला है और अच्छे की शुरुआत होने वाली है। और अगर अच्छा चल रहा है देन इट विल कंटिन्यू टू गो सो। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है तो, चोरी डकैती नहीं की है तो। ठीक, for people who are in a relationship, Wheel of Fortune always suggests good time, commitment, planning for the future, investment for the future. For people who are single, it suggests that it is okay to be single for a while, but in the coming point of time, you will find the right person for yourself with whom you can settle down and look for the future. ठीक, मनी और करियर में जब ये कार्ड आएगा, then this suggests that wherever you are, keep on continuing. It shows promotion, it shows growth, it shows securing good ranks, saving for the future, investing into properties. And Wheel of Fortune also suggests that you may be getting a lottery out of nowhere. ठीक, now this is something जो कि जनरली लोग पूछते नहीं है कि अब लॉटरी का सिस्टम खत्म हो गया है, but still Wheel of Fortune suggests that you may be getting a lottery sometime if you are going to buy it. This shows that financial difficulties are coming to an end and the negative aspect of your financial state is going down. This is the Wheel of Fortune. Any doubt? सर चारों ने ये जो बुक्स हैं इनके हाथ में, इसका भी क्या मतलब हो सकता है? लर्निंग, बुक खोल के आप पढ़ रहे हैं तो एयर एलिमेंट से क्या सीखने की जरूरत है? एयर एलिमेंट क्या किसका होता है? थिंकिंग का एलिमेंट होता है, सोच का एलिमेंट होता है। तो एयर एलिमेंट से हम क्या सीखते हैं कि लिमिट में चलेगी तो सब ठीक रहेगा, लिमिट लेस हो जाएगी तो सब उड़ जाएगा उस हवा के साथ। राइट, फायर भी जब तक कंट्रोल में है, क्वांटिटी में है, तब तक वो ठीक है, बढ़ जाएगी तो उससे आग भी लग सकती है। तो लर्निंग द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ये उसका मतलब होगा। और जब आप वो पढ़ेंगे कि न्यू टेस्टामेंट में 4 इवेंजलिस्ट का क्या मतलब है तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईश्वर जो है या जो एंजल फिगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके लेखा जोखा का हिसाब कर रहे हैं। आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, उसका हिसाब कर रहे हैं बैठ के। ठीक, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए, द नेक्स्ट कार्ड नाउ, जस्टिस। जस्टिस का जो कार्ड है दैट इज, पहला तो जो उसका न्यूमरोलॉजी लिंक आता है दैट इज नंबर 2, हाई प्रीस्टेस। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? उस समय बताया था जस्टिस, जस्टिस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फिजिकल परसेप्शन होना चाहिए और बियॉन्ड फिजिकल परसेप्शन भी होना चाहिए। बियॉन्ड फिजिकल परसेप्शन कहाँ से आता है? हाई प्रीस्टेस के पास से आता है। तो जो जस्टिस का कार्ड है, नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ कर्मा, दिस इज एक्चुअली अ कार्ड ऑफ कर्मा, दिस इज अ कार्ड ऑफ
getting paid for what you deserve. ठीक, यहाँ if you see जो ट्रेडिशनल फिगर होती है कानून की मूर्ति, यू नो द गॉड, द लेडी ऑफ जजमेंट जो भी उसको बोलते हैं, तो उसी के जैसा है, where there is a scale in her hands and there is a sword in hand. Scales क्या दिखा रहा है? That they are going to balance and analyze everything. जब आप सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो तोलता है एक एक चीज, अगर एक भिंडी भी ज्यादा हो रही होगी तो हटा देगा, ठीक है, तो यानी राइट जितना सर। आप पे कर रहे हैं उतना ही आपको मिलेगा, जितना आप अच्छा कर रहे हैं उतना ही आपको मिलेगा। ज्यादा लेने जाएंगे तो क्या करेगा? मारेगा, मार के भगाएगा। ऐसे समझिए इसको कि sword suggests authority, sword suggests a power to take the decision or power to pass the judgment, power to give justice, provide justice. और scales represent that they are balanced, they are focused, and you are at a position where you are ready to be fair. ठीक है, there is something called being fair as well. दो बच्चों के बीच में अगर कोई चीज बांटनी है तो दोनों का बराबर बांटो। किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, तो भले वो फेस पे कुछ ना बोले लेकिन उसको अंदर बुरा लगेगा, हो सकता है फेस पे भी बुरा लगे। तो जस्टिस इज अ वेरी सिंपल कार्ड टू अंडरस्टैंड ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको थॉट लाने की जरूरत हो सकती है ना। जस्टिस में देयर इज दिस ट्रेडिशनल लेडी हु इज सिटिंग बिटवीन द टू पिलर्स ऑन अ पोडियम, और इसके हाथ में जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं लॉ के, जो लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ जो लोग जिन्होंने कोर्ट देखा या कोर्ट रूम ड्रामास देखे हैं, उसमें ऐसे ही एक वो लेडी, बट उसके आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन यहाँ पे इसके आंखों पे पट्टी नहीं बंधी, विच मीन्स दैट इट इज फेयर टू यू। शुरुआत में क्या बताया था कि कानून की जो कानून जो है अंधा होता है, वो सिर्फ साक्ष्य मानता है। साक्ष्य अगर किसी ने प्लांट भी कर दिए, प्रूफ अगर किसी ने प्लांट भी कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा? इनोसेंट को फांसी हो जाएगी। इसीलिए जो हाई प्रीस्टेस से इसका कनेक्शन है वो क्या दिखाता है कि आप जब बियॉन्ड फिजिकल परसेप्शन देख सकते हैं तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सबूत सही है या सबूत प्लांट किया है, वो जजमेंट आ जाता है। इसीलिए नेक्स्ट कार्ड क्या कनेक्ट होता है? जजमेंट का। ठीक, सो हर विजन इज क्लियर, इसका जो विजन है वो क्लियर है, परसेप्शन क्लियर है, वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है। ये कार्ड जो है कि तब आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं, जब आप किसी टफ टाइम से जा रहे होते हैं, या कोई टफ टाइम आपके लाइफ में आने वाला होता है। बिकॉज दिस इज अबाउट कि जिसने गलत किया है उसको सर्व करना, और जिसने सही किया है उसको सही देना, तो सर्विंग द जस्टिस। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, कोई आपको धोखा दे करके गया है, तो वो कर्मा क्या करेगा? वो आपको जरूर, इट विल कम एंड बाइट यू इन द एस। ओ सॉरी, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी सिमिलर टू द हाई प्रीस्टेस और द हायरोफेंट एज वेल। दोनों स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड है, एक डिवाइन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, एक वर्ल्डली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। जब सब कुछ आपका पर्स, और चूंकि चूंकि दोनों देखने में, तीनों देखने में एक जैसे हैं, तो शोज अगेन अ सिमिलैरिटी कि जब आप दोनों तरह से ओपन होते हैं, open to experience, open to know, then you get to be the right decision maker of your life. ठीक है। जस्टिस जो है, चार कार्डिनल वैल्यूज हैं, चार कार्डिनल इंपॉर्टेंट कार्डिनल डायरेक्शंस जैसे होती हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, वैसे ही चार कार्डिनल वर्च्यूज होती है दैट एवरीवन शुड हैव इन लाइफ। फर्स्ट इज being just, or the first one is the justice, second is strength, then you have the temperance, and finally you have the judgment. ये चार are very important for any person when they are living in a worldly plane. जस्टिस करने आना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जजमेंट सही करने आना चाहिए, और टेम्परेंस यानी पेशेंस होना चाहिए। ठीक, नाउ इफ यू लुक एट दिस लेडी, the number is 11. 11
or 1 is the number of self-value. 1 and 1 balance each other, just like the scales balance themselves. Okay. 11 number card also connects it to the high priestess, that is number 2. ठीक. Okay. जिसके symbols हैं justice के, पहला तो जो stone pillar है, that is the boundary and the permanence. Justice जो होता है वो एक दायरे में रह करके काम करता है. It doesn't crosses the boundary. It doesn't crosses the limit. ठीक है. इसको ऐसे समझ सकते हैं that there are certain human fundamental rights. ठीक है, कि एक टेररिस्ट को भी खुद को डिफेंड करने का मौका दिया जाता है. दिस इज अ मॉरल ग्राउंड, दिस इज अ बाउंड्री, कि इसके बियॉन्ड चाहे तो उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट स्टिल बीइंग इनसाइड अ बाउंड्री, बीइंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज लॉफुल. तो ये वो दिखा रहा है पिलर्स. एंड इट शोज परमानेंस, यानी जस्टिस क्या है, वो परमानेंट है. परमानेंट जस्टिस का क्या मतलब है कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा नहीं रहेगा, जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल. जैसे ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, वैसे ही जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल्स. देन यू हैव द क्राउन. Now the crown is the symbol of power and authority. There is a veil, पर्दा है. पर्दा कुछ कार्ड्स में डार्किश रेड होता है, यहाँ पर पर्पल है. तो कुछ जिन लोगों के कार्ड्स होंगे उसमें डार्किश रेड होता है इसका कलर, यहाँ पर पर्पल दिखाई दे रहा है, बट दे आर द सेम, राइट. इट represents spirituality or the soft boundary between जज का कोर्ट और आउटर वर्ल्ड, जज का कोर्ट एंड द आउटर वर्ल्ड. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जज बैठता है, उस जज के पास ना पब्लिक आ सकती है, ना जो पार्टीज होती हैं वो आ सकती हैं, नॉट इवन एनीवन एल्स कैन कम टू दैट जज. वो जज क्या होते हैं, आप समझ लीजिए कि उसकी जो हाईएस्ट रिस्पेक्ट होती है, जो उसकी हाईएस्ट क्या कहते हैं पावर होती है, उसको रिप्रेजेंट कर. ठीक है, जो ये वेल, that is first as spirituality and second is the boundary between the judges court and the everyday world. यानी एवरीडे वर्ल्ड की चिंता बाहर रख के, एवरीडे वर्ल्ड का परसेप्शन बाहर रख करके जो जज करने की शक्ति रखता है, वही जस्टिस कर सकता है. Then there is a yellow background which suggests clear sight and consciousness. Clear sight and consciousness. So is justice clear? What is the justice card about? Yes, sir. Yes. Now there is a square jewel in the between, in near the chest area. ये और भी एक जगह था, कहाँ पर था? डजन एक किसी को याद है? स्क्वायर सिंबल चेस्ट के पास. चैरियट कार्ड में से. हाँ, चैरियट पे था सर. हाँ, चैरियट में था. चैरियट में क्या दिखा रहा था? दिस शोज बीइंग ग्राउंडेड, बीइंग सेंटर्ड एट अर्थ एलिमेंट, अर्थ का एलिमेंट जो हाँ, स्क्वायर वाला रहे. हाँ, अर्थ एलिमेंट है बट शोज बीइंग ग्राउंडेड. तो यानी जस्टिस करते समय भी आपने क्या करना है? ग्राउंडेड, सिविलाइज्ड रहना. ठीक, दैट इज व्हाट इट इज. ठीक, चलिए. तो जस्टिस जब आपके जनरल डेली क्वेश्चंस में आता है, justice shows that legal matters can be in your favor. Okay, justice represents that you have to own up for your actions and repent for the wrong ones. Justice also suggests that now it is the time to speak truth and stick to integrity. यानी कोई आपको झूठ बोलने का बोल रहा है कि ये ऐसा ऐसा झूठ बोल देना, मेरा ये काम हो जाएगा, नहीं, वो आपको बाद में आकर के परेशान कर सकता है. This shows that whatever the decision is or whatever the situation is, it is going to help you in the long run. ठीक? Justice suggests that you should be listening to everyone but doing what your moral conscience says as right. ठीक? For people in relationship, for people who are for love and relationship, for people who are in a relationship,
It's a corresponding Libra card. और ये Libra card suggests that being in relationship with a Libran, it may also suggest that there is honesty, kindness, and loyalty in this relationship. You may be starting a business or a venture with this person because justice is related to all kinds of paperworks. ठीक है, जो भी साइन करना है, ये आपका लीड डीड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सब प्रॉपर्टी साइन होती है. तो it also suggests कि you may be investing or getting into business with this person. For people who are single, this suggests that first you need to look at your wrongdoings, what you need to improve in yourself. Then you should be judgmental or you should be getting into any kind of a relationship. Because लोग क्या करते हैं, वो ये ऐसा दिखता है, नहीं, ये ऐसा बात करता है, नहीं, ये ऐसा होता है, नहीं. First you have to look what is lacking in you as a person. तब आपको दूसरे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, and then only you can be in a successful relationship. Money and career, it suggests that you need to balance your work and personal life. क्या था वेल, क्या था सेपरेशन बिटवीन द जजेस कोड एंड द एवरीडे वर्ल्ड. तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है कि जब आप काम पर हैं तो काम करें और उसमें है तो उस पर ध्यान दें. बिकॉज ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वेयर पीपल आर नॉट एबल टू फोकस और देयर वर्क इज गोइंग डाउन. जिसका रीजन क्या है, वो पर्सनल लाइफ को, अपने लव रिलेशनशिप्स को ज्यादा मैटर और ज्यादा टाइम दे रहे हैं. ठीक. देन it shows making careers in legal world in होता है CA, lawyer, judge, ठीक, इस तरीके के career fields में जाना. Justice also suggests that you will be rewarded for the hard work that you've been doing, which may suggest promotion. It can also suggest getting bonds or the shares of the company. बहुत सारी कंपनीज होती है ना जो कि आपको सैलरी के साथ अपने शेयर्स भी देते हैं कि ये शेयर है तुम्हारा, ये whatever. So those kinds of things can also be seen with this card. Financially, it shows that you should be investing and saving for the future and making sane decisions while spending. यानी if you're spending, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधा खर्च किए जा रहे हैं. एक बैलेंस में, और जो जरूरत हो उस हिसाब से ही वही काम करना चाहिए. तो जस्टिस का एक और एस्पेक्ट क्या है कि जो जरूरत है वही करो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो. जरूरत के बाहर इन्वेस्टमेंट, जरूरत के बाहर वो काम नहीं करना चाहिए. ठीक. डू व्हाट योर मॉरल कंपास सेज एज राइट. क्लियर? Yes, sir, clear. Yes, sir. ओके. तो अभी तक आपने कितना सीख लिया? मोर देन हाफ कर लिया. फूल से शुरू हुए थे और जस्टिस पर आ गए, राइट? Yes, sir. So let's have a quick 5-minute break and continue with the remaining cards for today. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Join at 9, but please join at 9. Yes, yes, sir. Yeah, इसका so the chakra for this card was not discussed. This and the Wheel of Fortune. इसका चक्रा है Earth Star चक्रा. That is for spiritual grounding. Earth Star ये आपके पैर से 2 फीट नीचे करीब होता है. तो आप बैठे होंगे, आपके पैर के 2 फीट नीचे अर्थ स्टार चक्रा होता है. दैट इज फॉर स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग. इसीलिए क्यों कहते हैं कि घास पे नंगे पांव चलना चाहिए. वो चक्रा जमीन में अंदर एंटर हो जाता है और अर्थ उसको ग्राउंड कर देती है, अर्थ उसको क्लियर कर देती है, क्लीन कर देती है. इसीलिए हरी घास पे चलना इतना अच्छा होता है. हरी घास पैरों को तो जो सुख देती है वो देती है, लेकिन इस चक्रा को प्योरीफाई कर देती है. हिंदी, हाँ मेरी हिंदी के ऊपर हंस रहे हैं. ठीक है. देन देयर इज अ सोल स्टार चक्र. सोल स्टार चक्र जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, दैट इज आपके हाँ एज फार एज आई रिमेम्बर आपके सर से 10-15 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर ऊपर होता है. ठीक है. सो दैट इज फॉर योर कनेक्शन, योर सोल्स कनेक्शन, हायर सेल्फ और सोल का कनेक्शन. सोल तो इसी के अंदर है, हायर सेल्फ भी कहीं आसपास है.
ठीक है, किसी ना किसी रेल्म में तो हायर सेल्फ है ही। तो हायर सेल्फ और सोल का कनेक्शन कैसे हो? इस चक्रा के थ्रू, इट्स लाइक अ पोर्टल टू कनेक्ट थ्रू। तो इसीलिए सोल स्टार चक्रा फॉर सोल कनेक्शन। ठीक। चक्रास के बारे में अगर पढ़ना हो तो देयर इज अ बुक कॉल्ड रेज योर वाइब्रेशन। ठीक है, काइल ग्रे की किताब है। वो रेज और वाइब्रेशन आप पढ़ सकते हैं, उसमें चक्रास को बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है। यस आन्या। यस। So this chakra is located above crown chakra या below crown? अबव क्राउन चक्र। क्राउन चक्र तो थोड़ा बाहर हुआ, यहाँ पे उससे होगा। और बाहर हुआ, है ना, ऐसे। ठीक। नाउ द हैंगमैन। अब जस्टिस तो कर लिया, जस्टिस ने क्या किया, आपको मे बी हैंग कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी डूइंग्स सही नहीं थी शायद, आपका कर्मा सही नहीं था शायद। तो आप कहाँ आ गए? अब आप हैंग्ड मैन में आ गए। हैंग्ड मैन का जो पिक्चर है दैट इज वेरी रिजेम्बलिंग टू, कि जिसको कि फांसी पर लटका दिया गया हो, बट गले से नहीं बांधा है, पैर से बांधा है। ठीक है, यानी इट इज नॉट टू किल यू, but it is to stop you for a while, put a halt in your life, put a stop it to your life थोड़े देर के लिए या कुछ समय के लिए। now this is a man who is suspended from a tree। ठीक है, अगर ऐसे देखें तो बहुत ही ऐसा भयावह सा कार्ड है, which is like कि अच्छा ये तो टांग ही दिया, सीधे मार ही दिया। लेकिन when you look at his face, he is very calm, he is very content, उसको कोई भय नहीं, उसको कोई डर नहीं। ऐसी सिचुएशन में लटके होने के बावजूद अब आपको लटका दिया जाए एक पैर से उल्टा बांध करके, तो आप तो चटपटाते छनछनाते रहे, लेकिन ये नहीं करा। इट इज वेरी काम, विच शोज दैट देयर इज अ रियलाइजेशन कि ये सिचुएशन अगर आई है तो इस सिचुएशन का क्या मतलब है मेरे। why is this situation important for me? Why is this stop, this halt is important for me? And there is also a halo around his head which suggests enlightenment, ज्ञान की प्राप्ति में। So this card is itself, it sometimes connects to the Christ who was crucified। ठीक है, क्रूसिफिकेशन से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है, बट ऐसे अगर देखें तो ये जो कार्ड है दैट स्पीक्स अबाउट कि आपके पैर हैं, चलते आप किससे हैं? पैर से। पैर इज अबाउट मोशन। उसी पैर से आपको उल्टा बांध के लटका दिया कि आप तुम चल के बताओ। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई सर्कमस्टेंस भी हो सकता है, आपने कोई डिसीजन लिया हो, यू माइट हैव चेंज्ड जॉब and maybe that was not the right choice and you're feeling as if you're stuck at one place, you are in a relationship, you feel that there is no growth। तो ये व्यक्ति भी जो है that is also ये जो इसको हैंग किया गया है वो भी किससे किया गया? ट्री ऑफ लाइफ से। ट्री ऑफ लाइफ which is a symbol of the world, symbol of world in a nutshell। ठीक है, तो इस ट्री पर भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, which shows that there is a possibility of growth। भविष्य अच्छा होगा उसकी होप है। ठीक, अभी मे बी थिंग्स आर नॉट वर्किंग, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, हो सकता है एक ऐसा फेज हो और जहाँ पे सब ब्लैंक हो जाता है, सब कुछ स्टक है, कुछ नहीं चल रहा है, बट योर फ्यूचर इज ऑप्टिमिस्टिक। व्हाई? बिकॉज द ट्री ऑफ लाइफ is not dead, tree of life is still small little leaves which are growing to suggest that there is a possibility and he's safely tied, यानी आपको कोई खतरा नहीं है। at this level you are not at a position to lose something। आप उस रिलेशनशिप को नहीं लूज करेंगे, आप उस जॉब को नहीं लूज करेंगे, आप उस सिचुएशन में नहीं हारेंगे, बस आप क्या है, एक जगह स्थिर खड़े हैं। ठीक। So, the Hanged Man is a card which is speaking about a halt or a pause in your life। This pause is very similar to the hermit वाला pause, लेकिन hermit में क्या था? क्लैरिटी नहीं थी। यहाँ पर क्लैरिटी है, यहाँ पर आप आउट इन द पब्लिक है, वहां पर यू आर अलोन, ऑल बाय योरसेल्फ। यहाँ पर आप सबके साथ होते हुए भी एक जगह खड़े हैं। ठीक है, मूवीज में एक सीन होता है कभी कभी जब उनको टाइम पास करता हुआ दिखाना होता है तो कैरेक्टर बीच में खड़ा होता है और लोग सारे ऐसे 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 फटाफट चलते चले जाते हैं।
So it is something like that. The world is moving, but you are still at one place. You don't know how to proceed forward. लेकिन एक ऑप्टिमिज्म है कि भविष्य अच्छा होगा. Now the figure. This figure is an early Christian symbol, which is also called the file fought cross. ये क्रॉस और ये जो फिगर है जिसमें ये प्लस की तरह से लटका हुआ है, क्रॉस की तरह से लटका है, these are all Egyptian symbols. क्यों? क्योंकि जीसस को जब क्रूसिफाई किया गया, ऐसे लटकाया गया था, तो he was not dead immediately. He was made to suffer first. So this shows that suffering has come onto you, but Christ died. Why? Because he needed to go back from where he came. He needed to go back to the God. ठीक है? Christ को itself God नहीं consider करते. Christ is a picture of God. ऐसा बोला जाता है. ठीक? As by my understanding. I may be wrong. If there's a Christian out there, I'm sorry. ठीक है? लेकिन कैथलिक स्कूल में पढ़ के तो नहीं पता चला है. Okay, so this is the symbol which suggests that this is a time where you may be suffering, but that suffering is going to uplift you, is going to enlighten you, is going to help you get a better person and help others around you. ठीक है? क्यों? ये क्राइस्ट को जब टांग दिया गया, मार दिया गया, उसके बाद लोगों को पता चला कि अच्छा है तो भगवान का अंश था जिसको हमने अपने हाथों से मार दिया. These are all symbols जो कि आपको कभी कभी पढ़ना चाहिए. कभी कभी अभी क्रिसमस आ भी रहा है तो उसको थोड़ा सा ऐसा पढ़ने की, जानने की कोशिश करिए कि ये सिंबल्स क्यों हैं. जैसे अभी फोर इवेंजलिस्ट थे, उनका क्या मतलब है. जो स्टार जिसको फॉलो करते हुए सारे वो तीनों प्रॉफिट्स गए थे, उसका क्या मतलब है. ये सब चीजें पढ़िए. ठीक है? And there is the halo. That halo is a symbol of spiritual enlightenment and is also a symbol of protection. ठीक? तो hangman keywords हैं feeling trapped, confined, limited, uncertain, lack of direction and letting go. यानी कोई चीज अगर हाथ से जा रही है उसको जाने दो. Maybe it is the right thing to do at that point of time. ठीक? You are not losing onto something. You are just letting it go. You can go and achieve it later also. ठीक? तो general meaning में it represents that you may be feeling stuck in life, or you're not just happy with the current situation. You may be in a dilemma to make a choice or how to proceed further in life, but you should take this time out and make a clear choice. नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं. 10 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, just pass. Give yourself that time. Give yourself that benefit of relaxation. Relax and then decide. Relax and then plan. Then proceed forward. बहुत लोग क्या होते हैं, कुछ काम नहीं बन रहा होता है तो एकदम ऐसा उबाल आने लगता है कि अरे अभी ये नहीं हो रहा, अभी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. बट जब कोई चीज काम नहीं कर रही होती है तो सबसे बेस्ट डिसीजन क्या है? उसको साइड रख के दिमाग शांत कर, उसके बाद उस पर वापस आना. ठीक? जस्ट एज पढ़ाई, मैथ्स का कोई सम नहीं समझ में आ रहा है, उस समय हो सकता है योर माइंड इज टू ऑक्यूपाइड. सो द हैंगमैन सेज दैट योर माइंड इज टू ऑक्यूपाइड, राइट? Clear it out and then come back and discuss and resolve that issue. Love and relationship में, for people in a relationship, this suggests that your relationship might have reached a kind of a dead end where you don't know how to proceed. आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही हो सकती है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही हो सकती है, सामने वाले की क्या फीलिंग्स है आपको समझ में नहीं आ रहा हो सकता है. But all of this suggests that you should be giving this time out and let the things flow as they are. ठीक है? समय के साथ चीजों को होने दीजिए. जरूरी नहीं है कि कोई चीज तुरंत हो जाएगी, आज के आज हो जाएगी, कल के कल हो जाएगी. But it's taking time, let it do so. For people who are single, you may be still stuck at a situation, or you may be still feeling low. Oh, I'm single, nobody likes me, how can I go out, how can I explore? So it's okay. Absorb those feelings, process, heal from that feelings, and then move forward. Money and career mein, this feels a stagnant point in your life where you, in your career, where you don't know what is happening. Your promotion might not be happening. Your teachers might not be very happy with you, and nothing is working out. Like, oh, then it's a writer's block, creative block. वो reach करना एक अपने career.
ये नहीं समझ आना कि ओके हाउ शुड आई मूव फॉरवर्ड, शुड आई स्विच, शुड आई बी हियर, व्हाट टू डू। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंगमैन रिप्रेजेंट करता है। और हर सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे? टेक टाइम आउट, रिलैक्स, देन थिंक अबाउट इट। तुरंत डिसीजन लेना जरूरी नहीं है। ठीक। Hangman in finances show that there can be a financial blockage. ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज दैट नीड्स टू बी रिलीज, दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। हो सकता है आपका पैसा कहीं पर फंसा हो, स्टक हो, एंड विद टाइम द थिंग्स विल रिजॉल्व एंड यू विल गेट बेटर इन इट। ओके, वाज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, so Jagriti, Sakshi, Sam, Zoom user, are you people following up? Yes, sir. Actually, starting में मैं travel कर रही थी, इसलिए starting का part नहीं सुनी, वो recorded थी मैं सुनी, अच्छा, उसके बाद का सुना है। ओके ओके। Zoom user कौन है? Zoom user ऐश्वर्या। Yes, sir. Okay, please change your name. Yeah, sure. Okay. ठीक है, so this was the hangman. Hangman हो गया। अब hangman, when you are stuck, what do you want? A transformation, a change. डेथ का कार्ड आता है तो लोग वैसा पढ़ रही, उफ डेथ का कार्ड आ गया, अभी क्या होगा, अभी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, कुछ खराब नहीं होता डेथ से। डेथ दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहला, फिजिकल डेथ, जो कि 1%, 0.5% केस में कहीं पर आपको दिखेगा, दैट इज वेरी लो परसेंटेज। और दिख भी रहा है तो यू विल नॉट से इट। ये बेवकूफी नहीं करनी है कि आप मुंह खोल के बोल दें कि हाँ ये व्यक्ति तो मरने वाला है। ऐसा नहीं करना है कभी भी, बिकॉज यू डोंट नो, हो सकता है उसका कोई कर्म आकर के उसको लग जाए और उसकी जो डेड डेथ है वो आगे चली जाए। ठीक, सो यू कैन नॉट एवर प्रिडिक्ट अबाउट समवंस death, someone's or is someone going to die, when they're going to die. That should not be predicted. Number one. Number two, death means a spiritual transformation or letting go or endings. ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको कोई लेसन सीखना जरूरी है। Someone who is very confident और egoistic about their looks, और जब उसको कोई रिजेक्ट करके चला जाए आफ्टर 4 years of relationship, तो जो तबाही उसके ऊपर टूटती है वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईगो इतना हो गया था that he needed a transformation. He needed to realize that this is not the fact. You may be an ugly looking person, but you can still be good at heart. This is just a mere example. ऐसे ही बहुत सारे situations होते हैं where transformation is required, where changes are required. And ये changes आप next card में देखेंगे। Next card is next to next is tower. ठीक, तो डेथ क्या है? डेथ इज एक झटका है, अलार्म है कि देखो ये होने वाला है, और अगर तुमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो देयर विल बी अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डेवास्टेशन विद द टावर और द टावर। ठीक, सो डेथ कार्ड इज अबाउट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स। इट आल्सो सजेस्ट न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि कुछ खत्म होगा तो कुछ शुरू भी होगा। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी शुरू भी होती है। ऐसा नहीं कि आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हो गया तो आप फॉरएवर सिंगल रह जाएंगे, नहीं, कोई रिलेशनशिप दूसरा भी आएगा। व्हाई एम आई ऑलवेज रेफरिंग रिलेशनशिप? बिकॉज यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। पिछले 2 दिन से मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स आर ऑल अबाउट दिस एंड आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग टू रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सैचुरेशन पॉइंट आपके अंदर भी आएगा किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक है, कि जब आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन है तो हाँ सर, मोस्टली मैंने देखा हुआ है, ये मोस्टली 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो वही होते हैं, इसीलिए मेरे एग्जांपल्स ज्यादातर आई एम रेफरिंग टू रिलेशनशिप्स ओनली। ठीक है, सो डेथ में जब आप देखेंगे इट्स अ वेरी स्कैरी फिगर हु इज प्रायोरिटीज सर। अरे रिलेशनशिप कौन सी प्रायोरिटी होती है?
that should be the होती है second सर, आज के डेट में तो बहुत हो रही है। प्रायोरिटी होनी चाहिए, should be. ठीक, ओके। सो डेथ को जब आप देखते हैं, इज डेथ को रिप्रेजेंट करने का जो कॉमन तरीका होता है क्या होता है? जो डेंजर साइन होता है उस पे क्या स्कल्स बोन जैसी बनी होती है, एक स्कल होता है नीचे दो क्रॉस ऐसे बोन्स के हैं। वैसे ही इट्स अ वेरी टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ एंड डेंजर, ठीक है। एंड ही इज द रीपर, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि यमराज है जैसे, ठीक है, यमराज को रेफर किया जाता है। होप सबको यमराज के बारे में पता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? ठीक, तो यमराज, ठीक। और आप सब क्या है? हम सब एक फसल है जो कि बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। हमारा जन्म हुआ है इस दुनिया में, तो हम इस दुनिया में एक फसल है, प्लांट है, राइट। ये फसल जब रेडी टू हार्वेस्ट हो जाती है, तो जो बेचारा किसान है वो आता है और आपको काट के यहां से ले जाता है, ठीक। अंडरस्टैंड इट दिस वे, ठीक। एक खेत है, दुनिया एक खेत है। ईश्वर ने आपको यहाँ बनाया, यहाँ डाला, आप ग्रो किए, आप आपने लोगों की मदद की, आपने जीवन जिया, मौसम देखे, सिचुएशंस देखी। फाइनली जब आपने सब सीख लिया, आप तैयार हो गए, तो आपको यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। सिमिलरली इसका जो आप देखेंगे तो हाथ में देयर इज दिस फ्लैग व्हिच रिप्रेजेंट्स कि उस पे मेज बने, जो भुट्टे बने, कॉर्न। कॉर्न क्या है? वही हार्वेस्ट है जो वो काटने आए, ठीक है। वो लोग हैं जिनका समय अब पूरा हो गया है, जिन सिचुएशंस का समय पूरा हो गया है, ठीक है। एक चैप्टर अगर कोई आपको छोड़ करके जा रहा है आपकी लाइफ से, कोई बॉयफ्रेंड अगर किसी को छोड़ के जा रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, इट मीन्स दैट देयर चैप्टर इन लाइफ इज ओवर, ठीक। एंड डेथ इज कमिंग टू रीप दैट हार्वेस्ट, कि चलो भाई हो गया, अब चलो यहाँ से आगे दूसरे चैप्टर पे जाओ, ठीक। एंड ही इज राइडिंग अ हॉर्स। हॉर्स इज द हॉर्स को अगर देखें, so that itself resembles what it पहला तो ये उस फिगर को रिप्रेजेंट करता है जो अपोकलिप्स आई थी जजमेंट के पहले। उस अपोकलिप्स में ऐसे ही घोड़े के साथ ऐसे ही डेथ ने अपना काम किया था। तो अपोकलिप्स क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। अपोकलिप्स जैसे कि जैसे कलयुग का अंत, ठीक है। कंसिडर इट कि कली जब आएंगे, जो बताया गया है, कली आएंगे, कलयुग का अंत करेंगे, तो सब कुछ जैसा डिस्ट्रक्शन होगा, तो दैट डिस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज अपोकलिप्स। सो ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन उसमें दिखाया गया था डेथ का। सो दैट इज व्हाट योर इज, कि अपोकलिप्स आने वाला है, आ सकता है आपकी लाइफ में अगर आपने इसको नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज टॉक्सिक, एक दिन क्या करेगा? वो उसको मार के खत्म कर देगा, ठीक। अभी एक बहुत अच्छा केस चल रहा है, आई विल नॉट मेंशन इट, लेकिन सबको पता होगा, ठीक है, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप किस हद तक जा सकती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सबको पता है, तो आई विल नॉट डिस्कस इट। लेकिन ऐसा हो सकता है, ये चीजें होती हैं, यही है डेथ, यही है टावर। एक अलर्टिंग पॉइंट आया होगा वहां पर भी जिसको इग्नोर किया गया, दे मूव्ड फॉरवर्ड एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, द अपोकलिप्स, द टावर, राइट सर। ठीक। तो डेथ इज द रीपर हु इज what in action, and you see that there are four people in front. There's a priest, there is a woman, there is a child, and there is a king. King has already fallen, he has already given up in front of death, because king क्या है, वो लड़ लड़ के इतना थक चुका है कि अब उसके अंदर शक्ति नहीं है कि वो किसी और प्रॉब्लम को फेस कर सके। तो दिस शोज 4 stages of people when anything bad happens. पहले कुछ लोग तो अरे प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ करके, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो जो प्रीस्ट है, इट शोज दैट द प्रीस्ट इज प्रेइंग टू डेथ कि प्लीज डोंट किल मी, डोंट टेक मी अवे, आई एम हियर, आई एम प्रेइंग, मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं प्रीस्ट हूँ, मुझे मत मारो, ठीक। यानी आई लव यू, प्लीज डोंट लीव मी, मेरे को छोड़ के मत जाओ, वगैरह वगैरह, ठीक। देन देयर इज अ लेडी, देयर इज अ स्मॉल लिटिल वुमन। वो क्या करी, उसने मुंह मोड़ लिया है। मुंह मोड़ लिया यानी
यूथ है, आज हम सब जवान हैं, ठीक है। वी डोंट नो दैट डेथ इज वॉकिंग टुवर्ड्स अस। हमें नहीं पता है कि काल आ रहा है, ठीक है। एंड वी आर इन अ डिनायल कि अरे अभी थोड़ी डेथ आ रही है, डेथ तो तब आएगी ना। लेकिन किसी को पता है कि किसी की मृत्यु किस पल हो सकती है। सो वी आर ऑल लिविंग इन अ डिनायल ऑफ डेथ। डिनाइल ऑफ डेथ है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल आगे का प्लान बना करके बैठे रहते हैं और उस हिसाब से काम करते रहते हैं। बट हु नोस, कल मेरी आंखें ना खुले तो, ठीक। तो दैट इज डेथ। सो डिनाइल ऑफ डेथ, और ये किस में होता है, यूथ में होता है, जब तक आप जवान हैं, जब तक आपके अंदर शक्ति है। तो इसीलिए यूथ को रिप्रेजेंट किया गया, दैट यूथ denies that there is something called death, there is something called the end of time. They want to party till it's 6 in the morning, and they want to drive in luxury cars, go to Goa and do all the funny stuff. So they are in the denial. That is why they don't focus on the right thing, and they focus on having fun in life. Fun कर लो, जरूरी काम बाद में। तो चौथा कौन है? चौथा है वो बच्चा, छोटा सा, इनोसेंस। तो जो बच्चा है, वो बच्चा क्या है? what is it representing? It is representing that even if death is coming, even if such a grim figure is coming towards you, you have that innocence to accept it, कि वो आ रहा है, आने दो। बच्चे होते हैं वो हर किसी के पास आराम से चले जाते हैं, बच्चों को बहलाना आसान होता है, ठीक है। बहुत छोटे बच्चों को तो जाके रोने लगे, लेकिन ऐसे आप कोई लालच देंगे तो आपके पास आ जाए, बिकॉज दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो व्हाट आर योर व्हाट समवन्स इंटेंशंस आर। तो ये 4 स्टेजेस हैं इंसान के अंदर। पहला तो गिव अप कर देना, दूसरा उसके सामने प्लीड करना, तीसरा उसको इग्नोर करना, और चौथा उसको एक्सेप्ट करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, उसके सामने गिव अप कर सकते हैं, और उसके सामने प्लीड कर सकते हैं, ठीक। और इसका आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये सिटी गेट्स के बाहर, पीछे सिटी गेट है, यही सिटी गेट आपको भी मून में दिखाई देगा। तो सिटी गेट के बाहर हो रहा है, एंड सनसेट इज हैपनिंग। सनसेट इज हैपनिंग यानी अब रात शुरू हो रही है। रात इज व्हाट, अ डिफिकल्ट टाइम। तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज इजी। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिंपल हो, इजी हो। सो इट्स अ टफ टाइम, आई एग्री, बट स्टिल देयर विल बी अ न्यू सनशाइन। दोबारा से सूरज आएगा, जब सूरज सन का कार्ड आएगा तो द सन विल अगेन कम अप, अगेन थिंग्स विल इंप्रूव इन योर लाइफ। सो दीज आर चैप्टर्स। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का ये चैप्टर है जो कि फूल सीख रहा है, ठीक। सिटी गेट के बाहर हो, विच शोज कि पहले जमाने में जो क्रियाक्रम होता था, दफनाया जाता था, जलाया जाता था, उस सिटी गेट्स के, सिटी लिमिट्स के बाहर होता था। अब तो सिटी के बीच में ये सब चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो मौत का नाच होता है, वो नाच क्या होता है, वो बहुत ही सेक्लूडेड जगहों में होता है, निर्जन स्थान पर होता है, which shows that when death comes you are all alone. कोई अपोकलिप्स आएगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, टफ फेज आएगा, तो आप अकेले रहेंगे। ये एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी होती है। कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई नहीं आपके साथ खड़ा रहेगा जब आपको प्रॉब्लम आएगी। ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस किसके अंदर है? उस छोटे से बच्चे के अंदर। और डेथ आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो आप देखेंगे कि जो किंग है उसका क्राउन गिरा हुआ है, यानी पावर भी काम नहीं आती। होता है ना, बुरे दिन आते हैं जब, तो वो रुकते नहीं है, आप उसको कितना भी कोशिश करने। यही इस डेथ कार्ड का मतलब है। इट्स अ वेरी ग्रिम कार्ड, देखने से ऐसे लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड कार्ड, विच शोज कि आपको एक बहुत बड़ा लेसन अपनी लाइफ में सीखना है। कि पहला क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी, इनएविटेबल है। जैसे डेथ इनएविटेबल है, वैसे ही डिफिकल्ट टाइम्स आर इनएविटेबल। सो एक्सेप्ट, व्हेन दिस हैपेंस यू आर ऑल अलोन इन लाइफ, ठीक है। अभी घबराहट हो गई थी कि रिकॉर्डिंग नहीं चालू है, ठीक है, इतना बकबक बकबक कर दिया, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक। सो no one is there to help you out, you are all by yourself and nothing is going to work out.
ठीक, तो यही डेथ का कंसेप्ट है, यही डेथ कार्ड है जो कि समझ में आना चाहिए। Symbol number 1, there is the standard of the flag on which there is a white rose. So rose symbolizes renewal and the corn is the harvest. जो harvest बताई थी कि ये काम अब पूरा हो गया है, इसकी अवधि अब पूरी हो गई है, जैसे इस मीटिंग की अवधि 10 मिनट में खत्म होने वाली है, ठीक है। Then there is a black armor. That black armor is a symbol of loss. Black is a symbol of loss and ending, and it is protected by the armor, which suggests that you can protect yourself from the loss and endings if you are aware of it. ठीक, the pale horse, आपने बताया था कि अपोकलिप्स के टाइम में जो चार हॉर्समैन थे उनसे इस कार्ड को कनेक्ट किया जाता है, ठीक। someone left. Then there is a bishop and the child. आपको बता दिया innocent child and the bishop are the symbols of pity, are the symbols of purity. यानी आप प्लीड भी कर रहे हैं तो आपके अंदर प्योरिटी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये आ रहा है, लेकिन आप बचना चाह रहे हैं उससे फिर भी, ठीक है। Then there is the city gates. City gates, it symbolizes that traditionally burial used to happen outside the city walls for hygienic reasons and other metaphysical reasons. That is why it is showing. This also suggests कि वो गेट बंद हो रहा है, सूरज ढल रहा है, यानी उस चैप्टर का क्लोजिंग पॉइंट आ गया है, वो चैप्टर अब खत्म होने वाला है, बंद होने। Then there's a small ship in the background. छोटी सी ब्लैक कलर की शिप है पीछे, ठीक। That ship is a symbol of a vessel that carries your soul after life. जैसे क्या कंसेप्ट है कि यमदूत आपको कहाँ कहाँ क्या ले जाते हैं, गरुड़ पुराण में क्या क्या मेंशन है, ठीक है। वैतरणी नदी पार करा के ले जाते हैं, तो वैतरणी नदी कैसे पार करेंगे, किसी ऐसे ही तैर के तो करेंगे ना, सोल है, सोल तो ऐसी ही है, उसकी कोई बॉडी तो है नहीं, पार कैसे करेगी, एक वेसल चाहिए उसमें बैठ के जाने के लिए। तो वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में इट इज अ वेसल टू क्रॉस द रिवर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद। अगर नॉर्मल सिचुएशन से कनेक्ट करना है तो दिस विल सजेस्ट कि आप इस अपोकलिप्स के होने के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के होने के बाद आप कैसे अपने आप को दोबारा से उस पार ले जाएंगे, क्योंकि रिवर है बीच में, सिटी उधर है, डेथ यहाँ हो रही है, तो वापस से नया चैप्टर शुरू करने के लिए आप कैसे जाएंगे? What will be the medium? Will it be healing? Will it be spirituality? Will it be meditation? Will it be so on and so forth? क्या करेंगे? That is that vessel. ठीक? So, death card in general meaning represents not a physical death, and physical death is only 0.5 to 1% cases. Rule number 1, you should not predict death or illness. जब कोई ICU में है, किसी में है, तो ये सब चीजें नहीं बकर करनी है। हाँ, लपेट के बोल सकते हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए, चीज क्रिटिकल है, लेकिन यू विल नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट एनीथिंग कभी भी, ठीक। Now, death suggests that there is an inevitable change coming in your life, which can bring a fresh new start. There's a positive direction that you will get in life, and this transformation will open up new ways or new chapters in your life. For people in a relationship, this card suggests that you need to work upon this relationship and break the old patterns. Get out if it is a toxic relationship. And you need to make big changes to make the things work out in your favor or in the favor of the relationship. Death may suggest end of a relationship if these toxic patterns are never ending and have been repeating over and over. Okay. For people who are single, death represents that you need to first heal and undergo a spiritual transformation that may be because of the previous ex or a previous relationship, और इट कैन बी किस लोगों की फैमिली में ऐसा होता है, पेरेंट्स का ऐसा टॉक्सिक होता है कि बच्चों में वो चीज आ जाती है कि हम किसी के साथ जाएंगे हमारे साथ वही चीज हो जाएगी। तो उन डर का सामना करके, उन चीजों को एक्सेप्ट करके तब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट रिप्रेजेंट्स फॉर पीपल हु आर सिंगल। मनी एंड करियर में डेथ कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज अ change happening which can be unhappy,
You might be on the verge of losing a job. जरूरी नहीं कि आप job lose करें, लेकिन you should start looking for a new one or start looking for new ways to work. Death card in a financial context represents that you may be overspending and you can be going to become a bankrupt. ठीक है, bankrupt, not actual bankrupt, but हाँ फिर भी आपका spending pattern आपको problem में डाल सकता है. यहाँ पढ़ा रहे हैं हमारी my mother is sending me वहां से बैठ करके मलाई कोफ्ते की फोटो. Inevitable. ठीक है. And it shows that financial issues will come to an end if you are ready to make the positive changes and if you are ready to bring positive attitude. कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करो. हाँ फाइनेंशियल क्रंच है, हम फालतू खर्च बंद करेंगे, ये नहीं कह रहे. पड़े हैं ना 1 लाख रुपए अकाउंट में, क्या करना है, पैसे घट रहे हैं ना, बढ़ तो रहे नहीं है उसमें. तो एक्सेप्ट दैट द प्रॉब्लम इज कमिंग एंड वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक, तो ये मतलब हुआ आपके डेथ कार्ड का. आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून सीखा, जस्टिस कैसे करते हैं ये सीखा, हैंगमैन के साथ रोड ब्लॉक आता है तो कैसे हैंडल करना चाहिए, और डेथ के साथ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हैंडल करनी चाहिए. राइट, ये चीजें आपने आज के दिन में देखी. और कल से हम क्या देखेंगे? कल हम देखेंगे टेम्परेंस. स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो खुद को हील कैसे करें, हाउ टू हील योरसेल्फ, हाउ टू वर्क अपॉन दोज ब्लॉकेजेस, रोड ब्लॉक्स, हाउ टू फाइट ऑफ. वो चीजें इस कार्ड के साथ विल बी लुकिंग टुमारो. ठीक, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? No, sir. नो Clear. सर. ओके. सर ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस आप आपने व्हाट्सएप पे डाले हैं हाँ. वो मतलब कितने दिनों तक हमें एक्सेस करने को मतलब हमेशा रहेगा. हमेशा रहेगा ना सर? यूट्यूब पे पढ़ा है, हमारा क्या जा रहा है. कभी भी बस वो लिंक आपको अपने सही पास बात है सेव सर. रखनी होगी. ठीक है, लिंक Okay, एक sir. जगह, उसमें एक ऑप्शन होता है ना व्हाट्सएप में स्टार मैसेज करने का, तो मैसेजेस को स्टार हाँ. करके या किसी एक जगह पर सारी लिंक्स आप स्टोर कर लीजिए, या आप में से कोई आप अपने लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट करिए, प्राइवेट प्लेलिस्ट.